Next, also give heading properties of GP. Properties of GP. Property 1. Properties of GP. पहला property, right? If all the terms of a GP, if all the terms of a GP be multiplied, if all the terms of a GP be multiplied or divided by the same non-zero or divided by the same non-zero constant or divided by the same non-zero constant, comma, then it remains a GP. Then it remains a GP with the same common ratio. Then it remains a GP with the same common ratio. ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दो, 3 to 4 lines you leave and next write property 2. Then it remains a GP with same common ratio. ठीक है ना, 2-3 लाइन 4 लाइन छोड़ दो, फिर next write. Second property, the reciprocal of the terms of a given GP. The reciprocal of the terms of a given GP is also a GP. The reciprocal of the terms of a given GP is also a GP. Written? 3-4 लाइन छोड़ दो, everywhere 3-4 lines you have to leave. Okay. Next, property 3. 6 properties are there. I will write it. Property 3, right? If all the terms of a GP be raised to the same power, if all the terms of a GP be raised to the same power, comma, the resulting sequence also forms a GP, comma, the resulting sequence also forms a GP. If all the terms of a GP are raised to the same power, comma, the resulting sequence also forms a GP. The resulting sequence also forms a GP. ठीक है? Next property, in a finite GP, the product of the terms in a finite GP, the product of the terms equidistant, from the beginning and the end. The product of the terms equidistant from the beginning and the end is always same and equal to the product of first and last term, and equal to the product of first and last term, and equal to the product of first and last term. Last property, right? 3 non-zero numbers ABC are in GP. 3 non-zero numbers ABC are in GP if B square equals to AC, are in GP if B square equals to AC. Okay. Next property, if the terms of a given GP are chosen at regular intervals, if the terms of a given GP are chosen at regular intervals, comma, then the new sequence so formed is also a GP. Then the new sequence so formed is also a GP. Next property, if A1, A2 ... till AN is a GP, if A1, A2 ... AN is a GP of non-zero non-negative terms, then log A1, log A2 ... log AN is also a GP and vice versa. Log A1, log A2 ... log AN is also an AP. Sorry, by mistake I said. Is also an AP and vice versa. Written. So these are the points which I'll explain everything one by one in detail. Okay. Start reading one point. पहला point.
If all the terms of a GP be multiplied or divided by the same non-zero constant, then it it is remains also a GP. GP with the same combination. देखो A1 A2 A3 डॉट 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 AN इज अ GP दिया हुआ है, ठीक है। GP का मतलब क्या होता है, रेशियो देख लो क्या होगा, A2 by A1 या तो क्या होगा थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, लाइक दैट। अगर मैं समथिंग मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कुछ भी मान लेते हैं n विथ 1। अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, NA1 NA2 NA3 डॉट 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 NAN। देखो अभी भी रेशियो सेम रहेगा, NA2 बाई NA1, n तो कट जाता है, सेम रहा कि नहीं, NA3 बाई NA2, फिर से n कट गया। So if a GP is multiplied with some number, non-zero number, it remains a GP, but the ratio is same as the original one. ये ध्यान रखो, ये एक नया GP बन रहा है, सेम GP नहीं बन रहा, अलग GP बनेगा, but ratio उसका और इसका क्या रहेगा, सेम। Similarly डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड n, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A1 by n, A2 by n, डॉट 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 AN by n, ये भी A3 by n। अब रेशियो अगर निकालेंगे सेकेंड बाई फर्स्ट, तो A2 by n बाई A1 by n, तो रिमेन्स व्हाट, सेम A2 by A1। सो दिस फॉर्म्स अ न्यू GP बट द रेशियो इज सेम, तो इज आल्सो अ GP लिख देता हूँ यहाँ पे इज आल्सो अ GP, ठीक है। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी, The reciprocal of the terms of a given GP is also a GP. this is very simple. Suppose A1 A2 A3 dot 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 AN is a GP। रेसिप्रोकल अगर कर दूं मैं सबका, तो क्या होगा, 1 by A1 1 by A2 1 by A3 डॉट 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 1 by AN। तो इस केस में रेशियो क्या होगा, A2 by A1 या तो A3 by A2, ठीक है। बट इस केस में भी देखो रेशियो कुछ अलग नहीं आएगा। सोचो इसमें मैं कैपिटल R लेता हूँ, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म में करूँगा, तो 1 by A2 बाई 1 by A1 करो सिंप्लीफाई, तो क्या दिखेगा, A1 by A2, A1 ऊपर चला जाएगा, A2 नीचे रहेगा, या तो R क्या हो सकता है, थर्ड बाई, तो 1 by A3 बाई 1 by A2, तो क्या होगा, A2 by A3। तो लॉजिकली थोड़ा देखेंगे तो यहाँ A2 by A1 R है, बट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, A1 by A2, तो रेशियो क्या होगा 1 by R। यहाँ पे A2 A3 by A2 दिख रहा है, बट हमारे पास क्या A2 by A3, तो R का क्या होगा, रेसिप्रोकल बन रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इट इज आल्सो अ GP। प्रूफ कैसे हुआ, बिकॉज बोथ द रेशियोज आर व्हाट, सेम। इफ समथिंग इज देयर इन GP, द रेसिप्रोकल इज आल्सो अ GP, बट द कॉमन रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो, क्योंकि यहाँ का कॉमन रेशियो क्या है, 1 by R आ रहा है, वहाँ का R था यहाँ का। आप समझ में आया, पक्का नोट करो। तीसरा प्रॉपर्टी, अभी दो प्रॉपर्टी समझेंगे, जल्दी बताओ। If all the terms of a GP be raised to the same power, the resulting sequence also forms a GP. If all the terms of the GP are raised to the same power, ऐसा है, this is a GP, है ना। Now raise everything to same power, मैं स्क्वायर कर लेता हूँ सब, A3 का भी स्क्वायर, सबका पावर मैंने क्या कर दिया, सेम, है ना। तो अब इसकी रेशियो कितनी थी, A2 by A1, या तो क्या था A3 by A2, ऐसा। अब इस ये GP है कि नहीं कैसे जानेंगे, द न्यू रेशियो विल बी व्हाट, A2 स्क्वायर by A1 स्क्वायर, तो इसको A2 by A1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। A2 by A1 क्या था, R, तो R स्क्वायर। एक बार और, दो रेशियो अगर सेम है तो सही है, GP है। फिर थर्ड बाई सेकेंड करो, तो A3 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A3 by A2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज R स्क्वायर। तो दोनों रेशियो क्या है, सेम, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ GP। तो ऐसे याद रखो, if a GP is raised to the some power, then the resultant is also a GP with the common ratio is original ratio का power n। जितना इसको रेस किए हैं वही कॉमन रेशियो का, अगर यहाँ सारा क्यूब होता है तो क्या होता है, r क्यूब, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास दिमाग में रख लेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4। In a finite GP, the product of the terms Okay, understood। सोचो कोई फाइनाइट GP है, ऐसे चलते जाएगा, तो लास्ट टर्म क्या होता है an, उसके पहले वाला क्या होता है an-1, उसके पहले वाला, लाइक दैट। तो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू
मतलब स्टार्टिंग से जितना डिस्टेंस पीछे से भी उतना, तो स्टार्टिंग से ये फर्स्ट है, पीछे से वो फर्स्ट है, स्टार्टिंग से ये सेकंड, पीछे से ये वाला सेकंड, स्टार्टिंग से थर्ड, पीछे से थर्ड, इन सबका प्रोडक्ट रिमेन सेम, इट इज सेम। तो करके देखते हैं a1 into an। तो a1 क्या होता है, an का क्या फॉर्मूला होता है, a r टू द पावर, जैसे AP में क्या करते थे a प्लस n माइनस 1t, यहाँ पे क्या होगा a r टू द पावर n माइनस 1, जो टर्म है उससे एक कम, तो a इंटू a कितना होगा a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1। अभी मैं क्या करता हूँ सेकेंड टर्म एंड पीछे से सेकेंड टर्म, तो a 2 है तो क्या लूँगा a r टू द पावर 1, क्योंकि 2 से एक नीचे क्या होता है 1, और a n माइनस 1, तो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 से एक नीचे क्या होता है n माइनस 2, ठीक है। तो a इंटू a इज हाउ मच a स्क्वायर, और r पर्टिकुलर पावर क्या होगा ऐड 1 प्लस n माइनस 2, तो a स्क्वायर r m तो रहेगा 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 1। देखो इज इट सेम और नॉट, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड से लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फिर थर्ड इंटू वो भी करके दिखा देते हैं a3 इंटू a n माइनस 2, तो a3 क्या होगा a r का 2, ये वाला तुम बताओ अभी, a n माइनस 2 क्या होगा a r टू द पावर क्या लिखेंगे n माइनस, इससे एक कम क्या होगा n माइनस 2 से एक कम क्या होगा, हाँ समझी। तो a इंटू a इज a स्क्वायर r टू द पावर 2 प्लस n माइनस 3, तो a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया या कोई डाउट? तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट सारे क्या आ रहे हैं, a1 an इज इक्वल्स टू a2 an माइनस 1 इज इक्वल्स टू a3 an माइनस 2 एंड सो ऑन। तो आगे और पीछे से अगर इक्वल डिस्टेंस पे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दैट प्रोडक्ट इज सेम एंड व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अंडरस्टूड? दीस टू प्रॉपर्टीज राइट फॉर। आगे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 5। हां बताओ। The non-zero numbers ABC are in GP if B square is equals to AC. अगर ABC आर इन GP तो ऑब्वियस बात मैंने क्या बताया, रेशियो क्या होता है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो B बाय A इज इक्वल्स टू क्या होगा थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, थर्ड बाय सेकंड, तो B इंटू B क्या होता है B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, वही होगा बोला है, समझ पाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6। If the terms of a given GP are chosen at regular intervals, then the new sequence Okay. so formed is also chosen. सोचो A1 A2 A3 A4 A5 A6 चलते क्या AN तक, दिस इज इन GP। मैं रेगुलर इंटरवल वाले चुन रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल आई चूज A1, सेकंड में चूज करके 3 चूज कर रहा हूँ, फिर एक छोड़ के 5 चूज कर रहा हूँ, फिर एक छोड़ के 7 चूज कर रहा हूँ एंड ऐसे चलते जा रहा हूँ, तो दिस इज अ GP और नॉट? इज आल्सो अ GP। देख लेते हैं कैसे A1 होगा अपना A, A3 क्या हो जाएगा A r स्क्वायर, 3 से एक कम तो 2, A5 क्या होगा A r टू द पावर 4, A7 क्या होगा A r टू द पावर 6। अब रेशियो निकालो, सेकंड थर्ड, मतलब इसके हिसाब से सेकंड कौन है A3 है ना, इस रेशियो इस GP में सेकंड टर्म कौन है A3, तो सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे तो A r स्क्वायर बाय फर्स्ट, तो कितना है r स्क्वायर है, फिर से निकालो थर्ड बाय सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म A5 है A r टू द पावर 4 बाय A r स्क्वायर, कितना है r स्क्वायर ही आ रहा है, रेशियो सेम आया, दिस मींस व्हाट, दिस इज आल्सो GP। अगर इक्वल इंटरवल में चुन रहे हैं तो वो भी GP होता है, ठीक है। हां नेक्स्ट प्रॉपर्टी, If A1, A2 till AN is a GP of non-zero non-negative terms, ठीक है। देखो A1 A2 A3 till AN is a non-negative non-zero GP, ठीक है, non-zero GP, मतलब यहाँ पे टर्म्स कैसे होंगे, A1 will be A, A2 क्या हो जाएगा AR, A3 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, A4 AR क्यूब। तो बोल रहा है जो लॉग वाली टर्म्स होगी, लॉग अगर सब में लॉगरिथम लगा दोगे, log A1 log A2 log A3 log A4 and so on, this will be a arithmetic progression। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जीपी से क्या बन रहा है एपी। देखो कैसे होता है, तो फर्स्ट टर्म लेता हूँ मैं, कैपिटल A1 ले लेता हूँ, तो क्या होगा log A1 की जगह क्या डालेंगे A, फिर कैपिटल A2 लेता हूँ, तो log सेकंड टर्म की जगह A2 की जगह क्या डालूंगा AR, तो AR को क्या लिख सकता हूँ log A प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई होने से खोल सकते हैं प्लस करके, फिर A3 log तीसरा टर्म क्या है AR स्क्वायर, तो क्या होगा log A
प्लस लॉग आर स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है 2 आगे आ जाएगा, तो लॉग ए प्लस 2 लॉग आर। ठीक है, फिर a4 निकाल लो, तो लॉग ए आर क्यूब, तो लॉग ए प्लस लॉग आर क्यूब, तो log a प्लस 3 log r आ गया ऐसे टर्म्स। अब देखते हैं डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो करो, इससे इसको माइनस करोगे तो बचेगा क्या, log r। फिर करो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इससे इसको माइनस करोगे तो log a तो कट जाएगा। 2 log r माइनस log r क्या बचेगा, log r। यू सी द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, सेम। तो इसीलिए अगर लॉग कर देंगे तो इट फॉर्म्स अ एपी नॉट अ जीपी। समझ में है? क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम, एबीसीडी आर इन जीपी और इसको प्रूफ करना था आपने। तो तुम लोग एबीसीडी को पहले रिप्रेजेंट कर दो इस तरह का, ए खाली ए, बी को कैपिटल ए इनटू आर। देखो स्मॉल ए को स्मॉल ए तो नहीं लिख सकता, फिर नहीं तो तुम ऐसे करोगे तो और बढ़िया है। और सिंपल मैं बताता हूँ, ए फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म a इंटू आर, फर्स्ट टर्म के साथ इंटू आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट के साथ 2 बार r मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और d क्या हो जाएगा फर्स्ट के साथ 3 बार r मल्टीप्लाई करेंगे तो a r क्यूब। समझ गए? तो अभी पूछ रहा है ये जीपी में है कि नहीं है। तो फॉर दिस टू बी इन जीपी, इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3। तो कैपिटल R इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, A2 बाई A1, तो B प्लस सी बाई A प्लस बी। तो B अपना क्या है AR, C क्या है AR स्क्वायर, और ये क्या है A प्लस B क्या है AR। कॉमन इसमें से क्या निकलेगा, AR कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस R। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा A, बचेगा क्या 1 प्लस R। 1 प्लस R कटा, A भी कट गया, तो क्या है R। नेक्स्ट व्हाट आई डू, अगेन टू फाइंड द रेशियो, थर्ड बाई सेकेंड, तो c प्लस d बाई b प्लस c। तो c वाज व्हाट AR स्क्वायर, d क्या था AR क्यूब, बाई b क्या था AR प्लस c क्या था AR स्क्वायर। ऊपर वाले से क्या कॉमन निकलेगा AR स्क्वायर, तो बचेगा क्या 1 प्लस R। नीचे वाले से क्या कॉमन AR, बचेगा क्या 1 प्लस R। कटा a भी कटा, R स्क्वायर बाई R इज हाउ मच R। तो दोनों बोथ द कॉमन रेशियो इज कमिंग same, then that's why it is a GP. Both common ratios same, therefore it is a GP. Understood? What is the question? A, B, C are in AP दिया हुआ है, ठीक है? तो कर लेते हैं, A, B, C तीनों AP में है। This clearly means दोनों का डिफरेंस क्या होगा, से b माइनस a शुड बी इक्वल्स टू व्हाट c माइनस b। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये तो पक्का है। x y z आर इन जीपी, तो x y z जीपी में है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, कैपिटल A r कैपिटल A r स्क्वायर लाइक दिस। अब मैं इसको लेता हूँ LHS, x के जगह में क्या लिखेंगे a टू द पावर b माइनस c, y क्या है a r टू द पावर, फिर a r स्क्वायर टू द पावर a माइनस b, लेट इट बी लाइक दिस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख कैसे सकता हूँ मैं, मुझे वही सोचना है बस। तो a टू द पावर b माइनस c कहीं कुछ दिख रहा है, कैन यू सी एनीथिंग? इसी में ही हमने लिख कैसे सकते थे, जरा सोचो, सारा टर्म्स में ले लेता हूँ। b माइनस a को मैं d ले सकता हूँ, क्योंकि b से a का डिफरेंस कितना होगा d। c माइनस a क्या हो जाएगा 2d, क्योंकि 2 to d का गैप आएगा ना, और c माइनस b क्या होगा खाली d, ठीक है ना। तो a टू द पावर में b माइनस c है, हमें c माइनस b दिखा है d है, और b माइनस c क्या होगा माइनस d। फिर a टू द पावर c माइनस a, c माइनस a कितना है 2d, देखो c माइनस a इज हाउ मच 2d, तो यहाँ पे a टू द पावर 2d लिख सकता हूँ, और r टू द पावर भी क्या 2d। फिर a माइनस b माइनस a है d, तो a माइनस b क्या माइनस d, तो a टू द पावर माइनस d, r का स्क्वायर है तो 2 इंटू माइनस d कितना होगा
-2t। अब कोई दिक्कत? फिर सारा a को जोड़ दो एक साथ, a टू द पावर -t प्लस 2t फिर -t, तीनों को जोड़ा, मल्टीप्लाइड है ना, और r का भी सब 2d -2t कटा, ये भी कट गया। तो a टू द पावर 0 r टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 into 1, आंसर क्या 1 RHS। इजी था ना? बस बेसिक टर्म्स वाइज तुम्हें लिखना है, b - a d है c - a, समझ पाए? So now we have to understand geometric mean between two numbers, जो कि है a and b। सपोज a और b के बीच में, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड। तो कैसा हो जाएगा, जैसे a b रहेगा, g1 g2 g3 g4 g5, 5 हमने इंसर्ट किया, तो g1 क्या हो जाएगा a इंटू आर, क्योंकि a के बाद है ना। g2 क्या हो जाएगा, a से कितना स्टेप दूर है, 1 2, तो a r स्क्वायर। g3 क्या हो जाएगा, क्यूब। वैसे ही g5 a r टू द पावर 5, जो है वही आता है, यहाँ पे घटता नहीं है, याद करो अरिथमेटिक मीन में भी an was a plus nd, n minus 1 वो तो जनरल टर्म होता है। रीजन क्यों है, क्योंकि a से b के अंदर कितना तो गैपिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर 5 मीन डाल रहे हैं तो दोनों के बीच का गैपिंग कितना हो गया, b is a r to the power 6, 5 मीन डालते a r to the power 6 हो रहा है। तो अगर n मीन डालते, n मीन इंसर्टेड अगर होता तो b would have been what, a into r to the power n plus 1। 5 मीन जब डाल रहे हैं तो देख लो 6 गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा आ रहा है, तो n होने से कितना होगा, n plus 1, तो b by a is equals to r to the power n plus 1, तो r कितना हो जाएगा, b by a whole to the power n plus 1 इधर आएगा, तो 1 by n plus 1। एनी डाउट? पक्का क्लियर? तो एक बार फिर r मिल गया, अब तो g1 g2 जो निकालना है निकालो, g1 will be what, a into r, g2 will be what, a into r square and so on। समझ गए? लिखो। Right, property, right, theorem 1, if a and g, capital A and capital G are respectively, if capital A and capital G are respectively arithmetic and geometric mean, if capital A and capital G are respectively arithmetic and geometric mean between two positive numbers, arithmetic mean and geometric mean between two positive numbers, small a and small b, a and b, then capital A is greater than G। ये मैं प्रूफ भी कर दूंगा थ्योरम कैसे होता है, ओके। सी व्हाट डिड आई से, कैपिटल A is arithmetic mean between A and B, capital G is geometric mean between A and B। क्या बोल रहा है, A ग्रेटर देन G होगा, यही प्रूफ करना है। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस B बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, नहीं सोचो, G स्क्वायर इक्वल्स टू AB। ज्योमेट्रिक मीन मतलब ऐसा होगा ना, A G B, तो बीच वाले का स्क्वायर पता है ना, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, प्रॉपर्टी था ना, ABC जब था B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, तो यहाँ पे क्या होगा, G स्क्वायर इक्वल्स टू AB, तो G कितना हो जाएगा अपना, रूट ओवर ऑफ AB। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, देख लेते हैं। मैं a माइनस जी से शुरू करता हूँ, a माइनस जी, मुझे प्रूफ करना है ग्रेटर देन करना है, बट मैं a माइनस जी खरीद लेता हूँ। तो ध्यान दो, a क्या है, a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू माइनस जी क्या है, रूट ओवर ऑफ ए बी, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी माइनस 2 रूट ओवर ऑफ ए बी बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू a के जगह मैं रूट a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, खाली b के जगह मैं रूट b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2 रूट a इंटू रूट b लिख सकता हूँ, खोल दिया बस a b को, बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ दिस थिंग बिकम्स
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका फॉर्मूला है? रूट बी का होल स्क्वायर। तुम्हें दुनिया में पता होगा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज व्हाट? ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बट स्क्वायर कोई भी चीज का ऑब्वियसली स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मैं ग्रेटर देन लेता हूं, तुम लोग ग्रेटर देन ही लिखा है क्या ना? हाँ, इक्वल्स टू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है, बट ग्रेटर देन 0 आई टू। तो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग मैंने लिया रूट a माइनस रूट b का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव नंबर में डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कोई दिक्कत है? ग्रेटर देन 0 बाय 2 इज व्हाट? 0। अब ये चीज कौन था? तो a इज ग्रेटर देन माइनस g को। अंडरस्टूड या कोई डाउट? पक्का? तो ये चीज कौन थी? ये थ्योरम इज सो इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस। एपीजीपी में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्रेंस में, क्योंकि वो बेसिक है। ये थ्योरम और इसके बाद एक थ्योरम बताएंगे, वही सब कुछ है एंट्रेंस में। पूरा लिख दो, फलक्रम ऑफ एंट्रेंस इज ऑल अबाउट दिस टू थिंग्स, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन। हर एंट्रेंस क्वेश्चन उसी से ही होता है, समझ गए? इसके बाद वाला और कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, बट ये अभी बेसिक समझ गए ना। इसके बाद वाला थ्योरम में मेन मजा है। Next theorem to all of you write. If capital A and capital G, if capital A and capital G are respectively arithmetic and geometric mean, are respectively arithmetic and geometric mean between two positive quantities, between two positive quantities, between two positive quantities small a and small b, comma, then the quadratic equation having small a comma small b as its roots, quadratic equation having small a and comma small b as its roots is x square minus 2 capital A x, ऐसा इक्वेशन जैसा लिख सकते हो ना, -2 कैपिटल लाइक दिस, x स्क्वायर -2 कैपिटल A x प्लस g इक्वल्स टू 0 लाइक दिस। ठीक है ना? फिर वो रूट ओवर में रहेगा। हाँ ठीक है, नोट दिस। तो हमें क्या बोला है कि इफ कैपिटल A इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, है ना, G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, ये सबको पता है। तो समझ में क्या आता है? A इज A प्लस B बाई 2, है ना, एंड G क्या समझ में आता है? रूट ओवर ऑफ AB। हम लोग जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे, याद करो क्लास 10th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा सोचो कुछ भी जैसा होता था, x स्क्वायर क्या लिखते थे? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखते थे। ये तुम्हें पता होगा। और एक चीज तुम्हें पता होगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये तो सीबीएसई वाले सबको डेफिनेटली पता होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और आईसीएसई वालों को याद है कि नहीं, आई डू नॉट, बट सीबीएसई क्लास 10 में ही है। ऐसे लिखते हो ना, करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0। क्या करते हो? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2, यू गेट x माइनस 3, x माइनस 2 0। तो x क्या आ रहा है? 3 2। जरा ध्यान से देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कर लो जरा, 3 प्लस 2 हो रहा है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करो, 3 2 कितना, यही है ना लॉजिक। तो अभी देखो यहाँ पे हमें सम मिल जाएगा, क्योंकि बोला क्या है इक्वेशन का, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर रूट्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन में क्या है, स्मॉल a स्मॉल b आर रूट्स। तो यहाँ से हमें एक चीज मिलेगा, कैपिटल A into 2 is equals to a plus b। सम रूट को इधर ले आओ, तो g स्क्वायर is equals to क्या हो गया? ab। तो यहाँ पे g स्क्वायर होगा, एक चीज मिसिंग। तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या है? 2a। सम ऑफ रूट्स इज व्हाट? मैं इसको 1 और इसको 2 ले लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। ठीक है,
तो सम ऑफ रूट्स कितना है 2a into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a into b है ना प्रोडक्ट, तो क्या होगा g स्क्वायर, तो प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? सो कभी भी a b दो रूट्स दिया होगा तो तुम क्या लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2 into अरिथमेटिक मीन into x प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तुम्हें दिया होगा the arithmetic mean of two numbers was found to be 5 and the geometric mean was found to be 3. Find the equation whose roots are those numbers. डायरेक्टली क्या करो x square minus 2 into 5 into x plus 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फट से आंसर आ गया। तुम्हें वो नंबर लेके ज्योमेट्रिक कितना सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तुम्हें तो नंबर नहीं दिया है, इक्वेशन पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन से कैसे पता करोगे? समझ पाए? नोट करो। थ्योरम 3, right? If capital A and capital G be the AM and GM, be the arithmetic mean and geometric mean, capital AM and GM between two positive numbers, then the numbers are capital A plus minus root over of a square minus g square, capital A plus minus root over of a square minus g square। ठीक है? कैपिटल A स्क्वायर, हाँ देख लो अभी यहाँ पे तुम्हें ये सब भूल जाओ। अभी तुम्हें क्या बोले, पढ़ो उस थ्योरम को। If A and G be the AM and the GM between हाँ। two positive numbers. कैपिटल A कैपिटल G क्या दिया है? be the AM and GM। हाँ ठीक है, such that such between two positive numbers, then the numbers are a plus minus root over of a square minus g. नंबर्स है, मतलब वो बोल रहा है ये नंबर को प्रूफ करो a इज कैपिटल A प्लस माइनस रूट ओवर जो भी, हम लोग का भी मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ये दिया है AMGM, अगर AMGM दिया है अभी थोड़े टाइम पहले क्या पता चला x स्क्वायर माइनस सम इनटू सम ऑफ नंबर्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस सम कितना हो जाता था 2a, निकाले थे हम लोग क्योंकि कैपिटल A वाज a plus b by 2, तो सम a plus b was how much 2a and capital G was root over of ab, that implies product ab क्या हो जाएगा g स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो 2ax प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा g स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको मुझे नंबर्स जानना है, नंबर्स रूट्स जानने होते तो क्या करते हैं, रूट किसका था a और b का था, तो अगर मुझे रूट सभी जानना है तो मैं क्या करूँगा x इक्वल्स टू लॉजिक क्या है माइनस b, तो माइनस b कौन है यहाँ पे, याद है ना वो फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस d स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस b कौन होता है x के आगे वाला टर्म माइनस 2a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर, तो माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या होता है पहले 1, c क्या होता है ये वाला g स्क्वायर, है ना, बाई 2 into a क्या होता है 1। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाई 2, तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले जाओ a प्लस माइनस, इसमें से भी 2 कॉमन निकालो, 4 कॉमन लोगे तो क्या 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कौन बचेगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो रूट्स क्या क्या मिले, x इक्वल्स टू एक मिला a प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, और एक तो क्या मिला हाँ a माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ये रूट्स है कौन, a और b तो है, क्योंकि तब लिखा है थे ना लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो स्मॉल a इज नथिंग बट कैपिटल A प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर and small b is how much capital A minus root over of a square minus g square। समझ में आया या कोई डाउट? क्लियर? नोट करो।